सम नंबर 24 22 देखो 22 सम नंबर 22 सम नंबर 22 देखो ये सम होमवर्क है तुम लोग का। आवाज आ रहा है मेरा? तो आवाज आ रहा है? तो होमवर्क नंबर 22 ये लिख के रख लो। और इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हम लोग एक न्यू टॉपिक करेंगे और उस न्यू टॉपिक में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखना है आज। Menon and Thomas were partners in a firm. Sum number 25. They share profits equally. Their monthly drawings are 2,000 each. Interest on drawings is to be charged either at 10% per annum. Calculate interest on Menon's drawings for year 200 2006. Assuming that money is withdrawn in the beginning of every month, the middle of every month, end of every month. Sum number 25 homework लिख के रख लो अच्छे से। Sum number 25 homework. On March 31, 2017, on March 31, 2017, after the close of the books of the accounts, the capital accounts of Ram, Shyam and Mohan show the balances of 18,000, 24,000, 18,000, 18,000.
and 12,000 respectively. And 12,000 respectively. It was later discovered. It was later discovered that the interest on capital at the 5% had been omitted. The profit of the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 36,000, and the partners' drawings had been Ram rupees 3,600, Shyam 4,500, Mohan 2,700. The profit sharing ratio of Ram, Shyam, and Mohan was 3 is to 2 is to 1. 3 is to 2 is to 1. Calculate interest on capital. Calculate interest on capital. After the books were closed, the capital accounts of Ram, Shyam, and Mohan showed a balances of 24,000, 18,000, 12,000, respectively. It was later discovered that interest on capital at rupees 5% has been omitted. Had been omitted. So since interest on capital, interest on capital, interest on capital, interest on capital, interest on capital. फाइंड आउट करना है, बट ये किसमें फाइंड आउट होता है? इट इज फाइंड आउट. इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. वो लीड करो इसको. क्या लिखे हम? Interest on capital is calculated on opening capital. Is calculated on opening capital. तो जब हम लोग कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, दिस मीन्स ओपनिंग कैपिटल. बट जो सम्स में दिया है, जो सम्स में है
वो है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जैसे जब हम लोग बनाए थे बहुत पहले नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। उस सम्स में हम लोगों ने बताया था कि हमें ओपनिंग कैपिटल में जाना है। तो उसके लिए हम लोग जितना भी प्रॉफिट निकाले जो कि कैपिटल में ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स जो कि लेस हो जाता है, उन सबको रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने लिखा था क्लोजिंग कैपिटल। सम्स का नाम क्या था? सम्स का नाम देख लो एक बार। तीन अकाउंट, तीन अकाउंट, तीन आदमी थे, तीन आदमी, तीन आदमी, तीन आदमी का नाम क्या क्या था? एक का था राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम, मोहन। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं यहाँ पर, did discover interest on capital profit of the year 2017 rupees 36,000. The partner's drawings had been Ram 3,600. ड्राइंग जो कि लेस होता है उसको हम लोग ऐड बैक कर रहे हैं 3,600। श्याम जो है उसको हम लोग 4,500 कर रहे हैं। मोहन जो है उसमें हम लोग 2,700 कर रहे हैं। 24,000 जो है 18,000 है एंड 12,000। मेरा वीडियो आ रहा है क्या? मेरा वीडियो आ रहा है क्या? हाँ या ना में कोई बोलो, जवाब दो तो एक बार। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ राम, श्याम एंड मोहन एड ड्राइंग से करने के बाद देखो यहाँ पर 27,600 आ गया, 22,500 आ गया और उसमें आ गया 14,700, 14,700, 14,700 और लेस करके क्या लेस करेंगे? प्रॉफिट शेयर among partners। प्रॉफिट शेयर अमाउंट पार्टनर्स कितना शेयर किया हुआ था? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, it was later discovered that interest on capital has been omitted. The profit for the ended was 36,000। अब इक्वली बोला गया है इक्वली शेयर किया था। क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स दे दिया है 24,000, 18,000 एंड 12,000 respectively। It was later discovered that interest on capital as 5% has been omitted। Profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 36,000 and partners drawings had been Ram 3,600, Shyam, Mohan। Profit sharing ratio of Ram, Shyam and Mohan was 3:2:1, 3:2:1, 3:2:1 है। और 36,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, दैट इज 3/6 होगा। 36,000 3/6 2/6 और 1/6 करेंगे तो 18,000 राम में आ जाएगा, श्याम में आ जाएगा
18,000, राम में आ गया, शाम में आ गया 636, 6,012, 12,000, और जैसे कि यहाँ पर हुआ था 6,000। इन सबको ऐड करके देखो, हमारा 45,600, 45,600, 44,500 और 20,700 आ गया, 20,700 आ गया। ये क्या था? ये हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब सिंस हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया है, क्योंकि मार्च 31 में एंड हुआ था, यहाँ पे कैलकुलेट लिखना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल तो हमारा आ गया, कहाँ चले गए सब? तो ओपनिंग कैपिटल तो हमारा आ गया, और आने के बाद हम लोग को अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बोला गया था वो निकाल रहे हैं। अब जो बोला गया वो निकाल रहे हैं। जो बोला गया वो निकाल रहे हैं। तो राम का है, राम का देखो कितना अमाउंट था कैपिटल, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल 45,600, उसके ऊपर 5%, 5% करेंगे, 45,600, 5% करेंगे तो कितना आएगा? 5% ऑफ 45,600 कितना आता है? ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ पर माइनस था ना, ये माइनस था, ये माइनस था, हमने ऐड कर दिया। इसको माइनस कर लो तो वही आ जाएगा, फिर अच्छे से क्लियरली हो जाएगा। 27,000, और उसके बाद फिर यहाँ 22, 12, 10, 10,500, और यहाँ वैसे कि यहाँ पर 8,700, 8,700। देखो अब कितना आता है, देखो अब आंसर आ जाएगा शायद 480। शाम का भी देखो वैसे ही आ जाएगा, 10,500। 10% होता है 105,050, और उसका हाफ कर देंगे तो 525 आ जाएगा। और मोहन का उसी तरीके से करेंगे, 10% 870, तो उसका हाफ कर देंगे तो 435 हो जाएगा।
देखो आंसर सर आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 480, शाम्स कैपिटल 525, मोहन्स कैपिटल 435। आई गेस आपने कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत इजी सम था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, हमने करवाया इससे क्योंकि शायद आपका मतलब ज़्यादा तक प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। आई गेस कंप्लीट हो गया है। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाला है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से दोगे तो बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे इसको। चलो, देखो आपको ये दिख रहा है, एक गारंटी ऑफ पार्टनर्स, गारंटी ऑफ पार्टनर्स दिख रहा है, दिख रहा होगा, गारंटी ऑफ पार्टनर्स। तो देखो, इस गारंटी ऑफ पार्टनर्स में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने का है। क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, कौन देगा, कितना देगा, किसको देगा, कौन देगा, कितना देगा, किसको देगा, कितना देगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग इसमें आ जाता है। और इस चीज को फॉलो करके हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस टॉपिक कवर करने का हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हो, बोलो। फादर लीव कर गया है। सर फादर लीव कर गए हैं। क्या क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? कर गया, यही बोल रहे हैं। जोर से बोलो, थोड़ा सा आवाज लाउड करके बोलो थोड़ा सा। सर सागर क्लास लीव कर गया है। क्लास लीव कर गया, हाँ। हाँ, क्लास लीव कर गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लीव कर गया। वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, उसका कुछ दिन से शायद तबीयत खराब है, क्या है पता नहीं। लेकिन लीव कर गया है। अब जैसा है वैसे चलेगा। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट अब लिखना स्टार्ट कर दो एक बार। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने का है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे।
गारंटी ऑफ प्रॉफिट लिखना लिख लिए, हेडिंग दे दिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट हेडिंग दे दिए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट लिख, एक बार रिप्लाई कर दो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, guarantee of profit if a partner is guaranteed a minimum amount of profit, a minimum amount of profit, then guaranteed partner will get higher of actual share of profit or guaranteed profit. If a partner if a partner is guaranteed or a minimum amount, a minimum mark कर लो amount of profit, then guaranteed partner जो है will get higher of actual share of profit or guaranteed profit. इसको लिख लिए होंगे, अच्छे से लिख लिए होंगे। तो देखो इसमें बोल क्या रहा है कि ऐसा बहुत केसेस में होता है जहां पर जो पार्टनर्स होता है उस वो अपना जो इनकमिंग पार्टनर्स है या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या फिर इनकमिंग इनकमिंग पार्टनर्स है, उस तरीके का पार्टनर्स में जो होता है, इनकमिंग पार्टनर्स वो होता है जो कि एडमिशन होने वाला जिसका पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसको नहीं छोड़ना, उन्होंने छोड़ कर नहीं जाए, हो सकता है उसको कहीं से ज्यादा ऑफर मिल रहा है, उसके लिए हो सकता है वो छोड़ जाए। तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको नहीं, उसको रोकने के लिए कि वो नहीं जाए और कंपनी के अंडर में काम करे, हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंडर में काम करे, तो उसके लिए एक एक तरीके का ग्रीडी उसको दिया जाता है, एक उसको लालच दिया जाता है कि अगर आप मेरे फर्म में काम करोगे तो आपको गारंटी हम करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको दिस मच अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। अगर प्रॉफिट अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया देन अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया देन अमाउंट ऑफ मनी guaranteed देन अमाउंट ऑफ मनी guaranteed अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाला अमाउंट उसको गारंटीड पार्टनर को हम दे देंगे, और अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है देन शेयर ऑफ प्रॉफिट तो फिर वो
अमाउंट ऑफ गारंटीड है उसको वो अमाउंट मिल जाएगी। प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो ज्यादा मिलेगा देन गारंटीड प्रॉफिट, और अगर गारंटीड प्रॉफिट ज्यादा हो गया देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट ज्यादा हो गया देन शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो उसको ज्यादा वाला अमाउंट मिल जाएगा। दोनों ही केस में जिधर ज्यादा है जिधर पल्ला भारी है वो उसको मिल जाएगा। एक तरीके का ग्रीडी होता है, और इस ग्रीडी के थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि आप मत जाइए, छोड़कर आपका काम है, आप कीजिए हम आपको इतना ज्यादा दे रहे हैं, आप मत लीव कीजिए। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब वो पार्टनर उस फर्म के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, उस पार्टनर का काफी अच्छा कनेक्शन हो जाता है, और उस पार्टनर्स की वजह से उस फर्म को बहुत सारा ग्राहक, बहुत सारा कस्टमर्स आ रहा है और कमाई भी अच्छा हो रहा है। तो बार बार की दूसरा पार्टनर्स लोग नहीं चाहता है कि वो आदमी छोड़ दे, और हो सकता है अगर वो छोड़ देगा तो फिर उसके ऐसा दोबारा ना मिल पाए। क्या बोले? क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गया हमारा गारंटेड प्रॉफिट। बट इसके बाद जो हमारा है, अब हम लोग इसको और इलेबोरेट करेंगे, हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप लिखो guaranteed partner will get his share of amount or higher profit. His share Guaranteed partner will get his share of amount or higher profit or higher profit or balance profit will be shared by other partners. देखो यहाँ पर गौर करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिलेगा उसको वो प्रॉफिट से ही मिलेगा। प्रॉफिट दोनों ही पार्ट है, बस फर्क इतना है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है, ये अमाउंट ऑफ मनी ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, और ये जो ज्यादा प्रॉफिट है, जो अमाउंट ऑफ मनी, मान लो हम उसको गारंटी दिए 5,000 रुपीज का, तो 5,000 रुपीज कहाँ से पेमेंट करेंगे? वो प्रॉफिट से ही पेमेंट करेंगे। और पर मान लो जब शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उस वक्त उसका शेयर 6,000 हो जाता है, 6,000, तो वो भी प्रॉफिट से ही जाएगा। उसको तो 5,000 रुपीज दिए बोला गया था, उसके बदले में उसको 6,000 रुपये मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा। बट मान लो अगर उसको 4,500 शेयर मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, तो उसको 5,000 प्रॉफिट ही दिया जाए। ये गारंटी का बहुत बड़ा एडवांटेजेस है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शेयर प्रॉफिट से सबसे ज्यादा अमाउंट तो मुझे ही मिलेगा। सबसे ज्यादा अमाउंट उस गारंटीड पार्टनर को ही मिलेगा। कम मिलने का कोई सीन नहीं है, कम मिलने का कोई भी सीन नहीं है। और जैसे मैं बोला था बैलेंस प्रॉफिट विल बी शेयर, तो जैसे भी दिया जाएगा दे दिया जाएगा, पहले उसका क्लियर कर दिया जाएगा,
फिर जो बचा कुचा रहेगा वो बाद बाकी सब पार्टनर्स लोग अपने में शेयर करेंगे। जो बचा कुचा रहेगा वो बाद बाकी अपने पार्टनर्स लोग शेयर कर लिया। तो ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या बोलने का कोशिश किया जा रहा था। हम लोग का सम्स में जो एग्जाम्स में आ सकता है कैसे दे सकता है देखो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर्स है। PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको बोलते हैं हम लोग, वो 3:2:1 है। तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर बना वो हुआ 15,000, 10,000, 5,000, 15, 10, 5, 30,000 का प्रॉफिट है पूरा टोटल। 30,000 का प्रॉफिट है पूरा टोटल। और उसको गारंटी दिया गया है, किसको गारंटी दिया गया है? सी को गारंटी दिया है हमने, सी को गारंटी दिया है हमने कि भैया आपको हम 8,000 रुपीज देंगे। देखो 30,000 में 8,000 रुपया उसको गारंटी कर दिया गया है। ये प्रॉफिट 30,000 से ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था। बट जो 8,000 है वो गारंटी है उसकी। कम होगा तो 8,000 मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला मिलेगा। कम होगा तो 8,000 मिलेगा और ज्यादा होगा, मान लो 5,000 से 10,000 उसका वैल्यू आ जाता है, इतना वैल्यू हो जाता तो 10,000 उसको मिल जाता। तो जो भी हो, जिधर भी हो, सी को ही ज्यादा मिलेगा, सी को ही गारंटी से ज्यादा मिलेगा। तो मानो 8,000 रुपये बोल दिया गया, अब बोल दिया है तो जो एक्स्ट्रा 3,000 रुपया उसको मिलेगा वो कौन बेयर करेगा? वो तो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे जो देंगे उसको, उसका शेयर से ज्यादा देंगे, उसका शेयर से ज्यादा देंगे, तो फिर वो 3,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कौन बेयर करेगा? जो डेफिशिएंसी आया है, शॉर्टफॉल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये शॉर्ट, ये फॉल है। और डेफिशिएंसी आया है, कितने का आया है? 3,000, 3,000 रुपए का डेफिशिएंसी आया है। 3,000 रुपए का डेफिशिएंसी आया है। और इस 3,000 को हम लोग को ए और बी बेयर करेगा। क्यों बेयर करेगा? कि भैया पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा तो तुम वही देगा, कोई दूसरा तो पैसा देगा नहीं। पैसा कौन देगा? पैसा तो वही देगा ना, दूसरा कोई पैसा देगा क्या? नहीं ना। उसी 30,000 से, इसी 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 30,000 से, इसी 30,000 से हमको उसको 8,000 रुपये देना है। 8,000 रुपये। तो जितना भी बियर होगा वो कौन करेगा? ये दोनों मिलकर करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, दैट इज 3:5। 3:2, जो उसका शेयर है उसके हिसाब से उसको बेयर करना पड़ेगा। कितना करेगा? 3,000 रुपये। कितना होगा? 3/5, 66, 1,800, और उसमें हो गया 1,200।
तो इसका घट गया आपका 13,200 हो गया, और इसमें हो गया आपका 8,800, और इसका चला गया 13,200, 8,800, 21,000, 22,000 और 8,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग, जो कि ए, बी और सी को दिया जाएगा। ए, बी और सी को दिया जाएगा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, और इसको हम लोगों को बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस चीज को बहुत क्लियरली समझ सकेंगे। ये एग्जाम में दे सकता है, कैसे बोलेगा पता है? बोलेगा 8,000 रुपये उसको गारंटी दे दिया गया है, और सिंस 8,000 रुपये उसको गारंटी दे दिया गया है, तो बाद में जो भी डिफिशियंसी आएगा टू बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द अदर पार्टनर्स इन देयर रेशियो, ऐसे दे देगा। सम्स करेंगे तो उस वक्त हमको और क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है। सम्स करेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम्स है, एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, ध्यान से इसको समझो, और इसको देखो, उसके बाद बोलो हमको कि इसमें क्या कुछ डाउट लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज। चैट में जल्दी से बोल दो कि हाँ, समझ में आ गया, और कुछ डाउट नहीं है इसमें, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सिंस समझ में आ गया, तो एक लाइन्स है जो लिख लो अच्छा से। If in the question it is told that deficiency in profit, deficiency in profit of guaranteed partner is to be borne by other partners.
क्वेश्चन में बोल दिएगा, जैसे मैंने अभी बताया ना, क्वेश्चन में बोल देगा अदर पार्टनर्स इन देयर PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर कट जाएगा तुम्हारा, कट के जीरो बैठा देगा, एक बड़ा सा जीरो। ठीक है, तो PSR यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, एंड देयर आफ्टर, इसको लिख रहे हो तो यस और नो जल्दी से आंसर दो तो। हम जो लिख आ रहे हैं वो लिख रहे हो तो। If in the question is told that deficiency in the profit guaranteed partner is to be borne BORNE by other partners in their PSR, the profit sharing ratio, full पूरा फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में, एंड दे आफ्टर जल्दी चैट में बोल दो हमको थोड़ा सा कि हम तुम लोग लिख रहे हो, किसी को छूटा नहीं है, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ, तुम लोग लिख रहे हो अच्छे से। Therefore, thereafter, the efficiency in profit is to be deducted in agreed ratio। एग्रीड रेशियो क्यों बोले पता है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी यहाँ पर आया है वो 2:1 में बियर होगा, 1:2 में बोले, 5:1 में, ऐसा करके बोल देगा। तो वो क्या होता है, कभी कभार पार्टनर्स लोग अपने में डिसाइड करता है कि ठीक है चलो, तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बेयर नहीं करेगा, ठीक है कौन से रेशियो में तुम बेयर करेगा, बोलो। बोलता है हम लोग 2:1 में करेंगे, बोलता है हम लोग 3:1 में करेंगे, मतलब अलग अलग रेशियो में उन लोग करने का मन है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हम इतना बेयर नहीं कर सकते, तो हमको रेशियो उतना अपना प्रॉफिट के हिसाब से नहीं कर सकते, तो उन लोग का कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को अपने आप सामने रखा, और तब डिसाइड हुआ कि इस रेशियो में हम लोग बेयर करेंगे। तो इसमें हो सकता है किसी को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा बेयर करना पड़ेगा, किसी को कम बेयर करना पड़ेगा। हो सकता है ए और बी में बी को ज्यादा बेयर करना पड़े, ए और बी को ज्यादा बेयर करना पड़े, ए को कम बेयर करना पड़े। या ये भी हो सकता है कि ए को ज्यादा बेयर करना पड़े, बी को कम बेयर करना पड़े। तो वो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि अगर कितना रेशियो में वो लोग बेयर करेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा तो है ही, कुछ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी बेयर कर देंगे, बोन जो करने का होता है वो। देखो हम जो वही लिखवाए ना, फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑफ पार्टनर्स गिविंग गारंटी, ऑफ पार्टनर्स गिविंग गारंटी। ए और बी दोनों बोला, ए और बी दोनों बोला सी मत जाइए, रुक जाइए थोड़ा, काम कर लीजिए, आप चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको हम लोग ज्यादा दे देंगे थोड़ा। क्या ज्यादा देंगे, हम आप लोगों को गारंटी देंगे कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए 8,000 से कम नहीं मिलेगा, 8,000 से ज्यादा मिलेगा बट कम नहीं मिलेगा, 8,000 से ज्यादा मिलेगा बट कम नहीं मिलेगा। और जो भी आपको देना पड़े
हम लोग उसका खर्चा उठा लेंगे, हम लोग मिलकर खर्चा उठा लेंगे। जो भी आपको देना पड़े हम लोग मिलकर उसका खर्चा उठा लेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3000 को, फिर जो डिफिशियंसी है वो 8000 लिखकर उस डिफिशियंसी को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट बोन करवा देंगे, माइनस करके निकालेंगे 13,200 8,800 ऑफ ए एंड ऑफ बी, और जो सी का है वो तो 8000 अपना फिक्स्ड है उसमें। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग guarantee of profit by all the partners, guarantee of profit by all the partners। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया वो। तो हम लोगों ने तो एफिशिएंसी के बारे में जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था वो दिखाया। एक और तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का। इस तरीके में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, ए बी सी 3:2:1 PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग। सी इज गारंटीड प्रॉफिट 8,000 ऐसे ही दे दिया। प्रॉफिट आया 30,000, सी को मिला, सी को प्रॉफिट से कितना मिलना था, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 इंटू 1/5 1/6 5। सी को कितना मिलेगा 8। सिंस सी को 8,000 मिलेगा तो फाइंड आउट, ये तो हमको पता है आपको सी को 8 का मिलेगा, सी का कुछ कुछ झमेला खत्म, सी को जो मिला था वो मिल जाएगा। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अदर पार्टनर्स का शेयर कितना हो सकता है। मान लो अब 30,000 में 8,000 उसको दे देगा तो बचेगा 22,000। 22,000 में उसका 3/5 का शेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि एक 1 तो उसको मिल गया है, तो हम लोग सिर्फ ए और बी का शेयर के हिसाब से अपना 22,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 22,000 2/5 करेंगे 8,800 13,200।
देख लो, ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का। जैसे हम लोग फर्स्ट तरीका दिखाए थे, वो एक तरीका है। ये भी एक तरीका है करने का, फाइंड आउट कि शेयर ऑफ ए एंड बी कितना आएगा, सी को कितना मिलेगा। वहां पर बस इतना एक चीज था कि कितना अमाउंट उसको बेयर करना है वो पता चल रहा था। हाँ या ना? पता चल रहा था ना? और सिंस कितना अमाउंट बेयर करने का है वो उसको पता चल ही जा रहा था, कितना अमाउंट बेयर करना है वो तो उसको पता चल ही जा रहा था, तो फिर दिक्कत तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा था बोला मेथड, ये मेथड ही बढ़िया है, ये मेथड ही बढ़िया है। अब चीज बढ़िया है तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग जो करेंगे वो सम्स करेंगे। कौन सा सम्स करेंगे? कौन सा सम्स करेंगे? चलो हम लोग सम्स को ओपन करते हैं, सम्स को ओपन करते हैं। सम्स में देखो, सम्स में देखो, सम्स में क्या बोला गया है? सम्स में क्या बोला गया है? सम्स में बोला गया है अमित, अमित, सुमित, समीक्षा पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था। अमित, सुमित, समीक्षा पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो में था। पार्टनरशिप और किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने में? 3:2:1। समीक्षा शेयर इन profit has been guaranteed by the Amit and Sumit by minimum amount of rupees 8,000. Profit for the year ended 30 was 36,000. Divide profit among the partners. Divide profit among the partners. डिवाइड करना है हम लोग। क्वेश्चन में कहीं में बोला है कि डेफिशिएंसी टू बी शेयर्ड अमंग इतना 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 में? कहीं नहीं बोला है। कहीं में बोला है? कहीं नहीं बोला है। अब सिंस कहीं नहीं बोला है तो हम लोग कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड फॉलो करेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड फॉलो करेंगे और उस सेकेंड मेथड में हम लोग करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बनाने का कोशिश कर रहा था मैं। तो चलो चलते हैं अपना मेथड में। तो हम लोग आगे है, आगे है, आगे है, आगे सम्स में। तो क्या बोला था सम्स में? 8,000 गारंटी दिया गया है। किसको दिया था? अमित, सुमित, समीक्षा। तो देखो बहुत सिंपल सा सम्स है। अमित, सुमित, समीक्षा। हमको यहाँ पर सिर्फ फाइंड आउट करना है कि तीनों का क्या शेयर होगा बस। कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, नहीं बोला। कोई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है, नहीं बोला। कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, नहीं बोला। अब सिंस अगर नहीं बोला है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरीके से करेंगे।
सेकंड मेथड करेंगे, सेकंड मेथड फॉलो करेंगे, सेकंड मेथड फॉलो करेंगे। और समीक्षा को कितना मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। समीक्षा को मिलेगा 8,000 रुपीज, उसका गारंटी है। एंड अब 8,000 रुपीज उसको मिलने वाला है। प्रॉफिट कितना था हम लोग का, 36,000। तो कोई इसको काट दो पहले, प्रॉफिट लिख लिया 36,000, समीक्षा शेयर 36,000 इंटू 1/6, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना। 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समीक्षा 36,000 इंटू 1/6, दैट इज 6,000 रुपीज उसको शेयर हुआ। और समीक्षा को मिलना कितना था, 8,000 रुपीज। अब समीक्षा के साथ मिल रहा था तो उसको मिल ही जाएगा, पर बाद बाकी लोगों का कितना बचेगा, 36,000 से 8,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 28,000। 28,000 आ गया। समीक्षा, सॉरी, अमित अमित का शेयर देखो, 28,000 इंटू 3/5, 28,000 इंटू 3/5, 5/4 20, 5/5 25, 5/5 25, 5 30 रुपया, 30 30 5 6 560, 560, 5,600, 5,600, 5,600 into 3, that is 15,000, सॉरी 16,800। 600 करोगे इंटू 3 तो 18,000 आएगा, और 5 इंटू 3 करोगे, यदि 5,000 इंटू 3 करोगे तो 15,000 आएगा। 15,000 प्लस 18,000, 16,800। और ये तो हो गया हमारा अमित का, अमित भाई का हमारा हो गया। अमित भाई ने बोल दिया चलो जो मिला वही सही। और सुमित सुमित भाई भी बचा हुआ है, भाई साहब को देना भी है पैसा। कितना पैसा देंगे, 28,000 इंटू 2/5, देखो 5,600 इसमें का भी है, 10,000, 13,200, सॉरी 11,200, 5,002, 10,000, 11,200। तो ये तो हमारा हो गया अमित, सुमित और समीक्षा का। समीक्षा तो 8,000 मिलेगा ही, और अमित को मिल गया 16,800, सुमित को मिल गया 11,200। तो अमित का हो गया 16,800, सुमित का हो गया 11,200, और
समीक्षा का हो गया। क्या सम आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से? क्या इस सम्स में कुछ और डाउट है? प्लीज जल्दी से बोलो, प्लीज जल्दी से बोलो। कुछ और डाउट है इस सम्स में? है क्या? कुछ डाउट है? रिप्लाई कर दो थोड़ा। रिप्लाई तो करते नहीं हो आप लोग। हाँ या ना, कुछ भी बोल दो। हेलो, कोई कुछ बोलो। ठीक, कॉपी कर लिया, इसको देख लिया ना, अच्छे से लिख लिया ना? लिख लिया ना? लिख, ऑप्शन आप लोग लिख लिए है तो एक बार हम लोग उस पेज में चलते हैं, उस पेज में चलते हैं और एक लास्ट बार देखते हैं कि एक बार लास्ट हम लोग उस पेज में जा रहे हैं जल्दी से। देखो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 16,800, 11,200 और 8,000। तो ये हो गया हमारा 27 नंबर सम्स कंप्लीट। गारंटी ऑफ पार्टनर्स का पहला सम्स। 28 नंबर सम्स में भी देखो, देखो वही चीज दिया हुआ है। इसको एक बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पिंकी, दीपाती एंड काकू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 5:4:1. 5:4:1. Kaku is given a guarantee that his share of profits in any given year would not be less than 5,000. ये जो 5,000 है ये उसका गारंटी प्रॉफिट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 5,000 से कम मुझे मिलना नहीं है। मुझे 5,000 तो चाहिए ही चाहिए। और डेफिशिएंसी जो भी होगा, इफ एनी वुड बी बोर्न बाय द डेफिशिएंसी जो भी होगा, इफ एनी वुड बी बोर्न बाय पिंकी एंड दीपाती equally. Profits for the year amounted to rupees 40,000. Record necessary journal entries in the books of the firm showing the distribution of profit. देखो इसी सम्स में कौन सा मेथड फॉलो होगा? कौन सा मेथड फॉलो होगा? कौन सा मेथड फॉलो होगा? फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड फॉलो होगा इसी सम्स, ये सम्स में फर्स्ट मेथड फॉलो होगा। ये सम तो हो गया और इसी सम्स में हम लोग देख पाएंगे कि हमारा दोनों मेथड बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया। तो हम लोग जब इस सम्स को करेंगे जो कि है कल, उस वक्त बहुत ध्यान से इस सम्स को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे जाकर हम लोग इसको और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, क्या कंप्लीट किया है? गारंटी प्रॉफिट का थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा एक्सपेंशन कंप्लीट किया है।
तो कंप्लीट करने के बाद जो मैंने बोला अभी अभी कि आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास 28 नंबर सम्स करेंगे, 28 नंबर सम्स करेंगे। ओके। और आज का जो होमवर्क है 22 और 25, 22 और 25 याद है तो इसको कंप्लीट करना। कल हम लोग देखेंगे सम्स। करने के पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले भेज देना। पीडीएफ वीडियो बना के भेजने का जरूरत नहीं है। इस दोनों सम्स को नॉर्मल फोटो खींच के भेज देना, जैसे कि हमको देख सके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद। पीडीएफ बनाने से काफी कुछ जो फिगर्स होता है वो काफी काला काला हो जाता है। ओके। तो आज का हम लोग क्लास यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके।